सो ये जो मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस हो गया, ज़िद हो गया, परसिवियरेंस, ये आने का एक ही तरीका है, विच इज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस behind whatever you are doing. And the other thing is, you need to have crystal clear clarity. Okay? And अब देखते हैं ये पर्पस एंड क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कैसे आता है. हेलो गाइस. सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, जो मैं आजकल I have been observing this around me and even within me, that how difficult it is to be absolutely original and to maintain that individuality. Because आजकल के टाइम में खास करके दो चीज़ें होती है जिसके वजह से ये ओरिजिनलिटी नहीं रह पाती है, अनफॉर्चुनेटली. द फर्स्ट थिंग इज़ द अमाउंट of information that we are consuming, be it while scrolling our phones on social media or by watching movies and TV shows, and like हमें शायद consciously ये पता नहीं चलता, but अगर आप ध्यान से देखो तो each and every thought, each and every action, your goals, your aspirations, your dreams, they are based on what you are feeding your mind. ओके, ये थोड़ा ऑब्जर्व करना अपने लाइफ में इस चीज़ को. एंड सेकेंड चीज़ है द पीपल दैट आर अराउंड अस. दे आर अ ह्यूज फैक्टर फॉर हाउ आवर लाइफ शेप्स अप. इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स देर आर पीपल ऑलवेज टेलिंग अस what we should be doing, how we should be doing, and क्या ड्रीम्स होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, क्या एस्पिरेशंस होने चाहिए. लाइक देर इज़ हार्डली एनी से लेफ्ट. लाइक कुछ भी हम सोचते हैं उसमें 10 लोग ऑलरेडी तुम्हें गाइड करने के लिए बैठे हैं. आप किसी भी लीडर को देख लो, whoever you follow, whoever you admire, you will see a very strong sense of originality, a very strong sense of individual nature, and a very firm integrity in them. And without being in touch with the individual nature that is within all of us, it is very difficult to be able to do something big that impacts you and the world around you. And you know, whenever they started off, they had to go through the same struggles of the world, the people around them, trying to fit them into into the traditional way of living. There were thousands of people around them who at every step told them why they should not take the risks that they are taking or do things that they are doing, that they are stupid and they will fail miserably. And sometimes people even fail miserably, and it's in a way okay. And you know, it's a natural human tendency ki if this is the traditional way of conducting things, the traditional way of living and thinking, अगर इसके बाहर कोई कुछ सोचेगा तो there will be always people who will try to bring you back into the traditional stream. It's a very wrong thing to do, because this is what kills the individuality in people. Everybody has that individuality, that originality. Everybody has that little voice that is telling them how they should conduct their life in their own ways. Now the only question is, how do we listen to that little voice which is coming from within when there is so much noise around us? And how does one be original and individual? अगर मैं अपने लाइफ को ऑब्जर्व करके इस चीज़ के बारे में बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से मैंने चीज़ों को कंडक्ट की है और करता हूँ आज भी, whenever there is this external voice around you, external noise that is trying to deviate you, at times like these you need that crazy zid जो होती है अंदर, a certain amount of self confidence in the way you conduct your thoughts,
in the way you conduct your actions, and a very strong determination to persevere through anything that is coming your way. But ये तो theoretical बातें हो गई कि ज़िद चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए, ये तो सबको पता है. द रियल क्वेश्चन इज़ ये आएगा कैसे. देखो, ये वीडियोस मैं कोई स्क्रिप्ट बना के आप लोगों से बात नहीं करता हूँ. जस्ट एक टॉपिक मेरे माइंड में आता है एंड रिकॉर्ड बटन ऑन करके आई जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड ट्राई टू रिमूव लेयर बाय लेयर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. तो जब तक हम जो भी लाइफ में फेस कर रहे हैं उसको क्वेश्चन ना करें, तब तक उसका रियल सेंस में सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा. तो यस, क्वेश्चनिंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं अभी. सो ये जो मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस हो गया, ज़िद हो गया, परसिवियरेंस, ये आने का एक ही तरीका है, विच इज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस behind whatever you are doing. And the other thing is you need to have crystal clear clarity. Okay? And अब देखते हैं ये पर्पस एंड क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कैसे आता है. देखो, पर्पस मीन्स जस्ट दिस. आप कुछ भी काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बहुत क्लियर होना चाहिए. और ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर डूइंग एंड यू हैव योर ओन रीजन्स टू डू इट. सो द पर्पस इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग टू हैव. बट विदाउट दैट सेंस ऑफ पर्पस the road ahead would not be easy, and the crystal clear clarity, for it to come, there's only and only one way, that आप जो भी करना चाह रहे हो उसको आप हर पॉसिबल एंगल से देखो. हर पॉसिबल एंगल से देखने का मतलब क्या? इट जस्ट मीन्स दिस, दैट जो भी आपका गोल है या जो भी टास्क जिसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, उसको अगर आप एब्सोल्युटली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से एंड डिटैच्ड होके देख पाओ, तब जाके वो क्लैरिटी आएगी. कैसे? बिकॉज क्या होता है, जब भी हम कोई काम हाथ में लेते हैं, जहाँ हमारा कोई ड्रीम होता है, वी आर वेरी अटैच टूवर्ड्स इट, वी आर वेरी इन्वेस्टेड इन इट, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली. सो वो अटैचमेंट का जो माइंड फ्रेम होता है, अगर उसके थ्रू हम हमारे गोल को देखने की कोशिश करें, तो वी विल ओनली सी वॉट वी वॉन्ट टू सी. वी वोंट सी वॉट इज़ एक्चुअली देयर. वी वोंट सी थिंग्स एज इट इज़. तो अगर वो माइंड फ्रेम का, अटैचमेंट का फिल्टर हटा के हम किसी चीज़ को देख पाए, दैट इज़ क्लैरिटी. व्हेन यू लुक एट थिंग्स just as it is, complete picture, no distortion of your mind, no filter through which you are looking at things. If this sense of clarity comes, then कुछ कमाल का होगा. तो अभी इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि पर्पस और क्लैरिटी किस तरह से लाइफ में काम करती है हमारे. इफ़ यू वांट टू वेक अप एट 4 in the morning every day, अभी हमें थियोरेटिकली तो सब ज्ञान पता है कि 4 बजे उठने के कितने फ़ायदे हैं, एंड ब्रह्म मुहूर्त और सुबह सनराइज़ के पहले उठना. हमने बहुत सारी बातें सुनी है उसके फ़ायदे क्या है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं उठ पाते? बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस नहीं है. हमें पता ही नहीं है क्यों उठना है सुबह, एंड वो क्लैरिटी नहीं है कि भाई हम उठ के करें क्या, उससे एक्चुअल सेंस में प्रैक्टिकली मेरे लाइफ में क्या फ़र्क आएगा. एंड जब भी रोज़ सुबह अलार्म बजता है, जब भी हम रात को सोते हैं कि कल सुबह मैं जल्दी उठूँगा ये सोच के, एंड जब भी सुबह अलार्म बजता है आप यही सोचते हो कि यार क्यों उठना है, यार क्या ही हो जाएगा. तो दिस इज़ व्हाट लैक ऑफ क्लैरिटी एंड पर्पस इज़. एंड अभी इसी चीज़ में एक सेंस ऑफ पर्पस और क्लैरिटी ऐड करते हैं. अगर मैं अपनी लाइफ का ही बात करूँ, तो I have a very very strong sense of purpose of waking up early in the morning, which is that I want to climb mountains in the best possible way. And एक clarity है
कि टू बी एबल टू क्लाइम द माउंटेन्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई नीड टू वेक अप अर्ली, आई नीड टू ट्रेन, आई नीड टू पुट इन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद पहाड़ों पे जाके मैं मर जाऊँगा, या शायद सक्सेसफुल ना हो पाऊँगा, या फिर जो एक्सपीरियंस मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिलेगा. आई विल लूज़ मनी, रिसोर्सेज एंड टाइम. एंड अब चाहे पूरी दुनिया आके मुझे कहे कि तू लेट उठ एंड सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं है, क्या आप उनकी सुनने वाले हो अभी? ना, बिकॉज एक क्लैरिटी है अभी, एक वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है जो ये एक्सटर्नल नॉइज़ को ब्लॉक आउट कर देगा, उसको बाहर ही छोड़ देगा. एंड जो अंदर से फिर आवाज़ उठेगी वो इतनी लाउड होगी कि ये सब बाहर की आवाज़, बाहर की बकवासें बंद हो जाएगी. इफ़ वी लर्न टू लुक एट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ in this way, in a very purposeful way and with a very clear mind, if we learn to do this with one aspect of life, then धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को ऐसे कैसे देखें. एंड जब भी ऐसे होने लगेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी मेंटेन होगी. जो आपका ओरिजिनल नेचर है उससे आप टच में आओगे, एंड वो अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से कंडक्ट कर पाओगे. एंड नथिंग कैन देन शेक यू. सो आई होप यू guys resonated with what I said and you liked this video. So yeah, thank you so much for watching. Thank you.